Assalamu alaikum. Emergence of clientelism in Pakistan's foreign policy. There is always an overarching question whether Pakistan is a client state or pivotal state. Firstly, we need to understand what does client state and pivotal state means. फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट जीन फ्रेंकोइस मैड्रिड के मुताबिक क्लाइंटलिज्म रिलेशनशिप है डिपेंडेंस का which based on reciprocal exchange of favors between two people, the patron and the client, whose control of resources are unequal. Patronage gets a clear advantage up to a point. In contrast, pivotal states are states that possess military, economic, or ideational strategic assets that are coveted by great power. Realistically, पाकिस्तान इन दोनों किरदारों को अदा करता रहा है. But most prominently, clientelism was a major factor in Pakistan's foreign policy. I think there is no need to guess who is our patronage. We all are well known of it. It's United States of America. यूएसए ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि साउथ कोरिया, कुवैत, अफगानिस्तान, इजिप्ट एंड जापान के लिए पैट्रोनेज का किरदार अदा करता रहा है. Now, what are the basic reasons behind clientelism in Pakistan's foreign policy? The first and most important reason is encirclement of India. ये एक नेवर एंडिंग कंसर्न इन सिक्योरिटी है पाकिस्तान में, जो पेनफुल और ट्रॉमेटाइज पार्टीशन के बाद स्टार्ट हुई और अब तक ख़त्म नहीं हो सकी. इवन द पैसेज ऑफ टाइम फेल टू मिटिगेट दिस conventional rivalry. Rivalry revolved around the territorial dispute of Sir Creek, Siachen, and Kashmir. Sir Creek issue is now over. Siachen is mostly administered by India, but the Kashmir issue is still prevalent. The next reason is economic bounties, military and financial assistance. Due to this paranoia, पाकिस्तान हमेशा से क्रेव करता रहा है इकोनॉमिक बाउंटीज़ को, एड को. 1951 से 2011 तक पाकिस्तान अमेरिका से $67 बिलियन एड ले चुका है. The other reason is dictatorship. Dictatorship is also the reason behind emergence of clientelism in Pakistan's foreign policy. Several scholars के मुताबिक अगर किसी कंट्री को एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट लाहक हो तो उस कंट्री की सिविलियन डेमोक्रेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी होती है मिलिट्री पर. As Huntington described, from the standpoint of civilian control, happy is the country with traditional enemy. But ironically, Pakistan have gone in far different way. In spite having traditional enemy, we have failed to stabilize civilian democracy. कभी मार्शल लॉ, कभी -1 फार्मूला ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को हमेशा से सबुटैच किया है. इवन द प्रोपगेटर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान के डिक्टेटर्स मोस्ट फेवरेट रहे हैं. उनके मुताबिक there is much difference between good dictators and bad dictators, and Pakistani dictators are the most great one. Eras of clientelism in Pakistan's foreign policy. The first era was Cold War, Cito during 50s to 60s. Pakistan and America's relation are sort of cyclical clientelistic relationship. दोनों के रिलेशनशिप बेस करते हैं इशू स्पेसिफिक और नीड बेस्ड अरेंजमेंट पर. 1950s में पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस इमर्ज हुए और पाकिस्तान कोल्ड वॉर में आयरन कर्टन के वेस्टर्न ब्लॉक यानी अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हुआ. यही स्टार्टिंग पॉइंट था पाकिस्तान की डिजास्ट्रस फॉरेन पॉलिसी का. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक पैरासाइटिक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी को बेहद नुकसान पहुंचा और इंडिया नॉन अलाइनमेंट में होने के बावजूद सेफ जोन में रहा, बल्कि अमेरिकन सपोर्ट भी उससे ही ज़्यादा हासिल था.
1962 की साइनो इंडियन वॉर में इंडिया को अनकंडीशनल सपोर्ट मिला अमेरिका की तरफ से, और 1965 की वॉर में सीटों और सेंटों में होने के बावजूद पाकिस्तान को बैक स्टेप किया गया और डिफरेंट सैंक्शंस इम्पोज किए गए। अयूब खान की जो अजम्पशन थी, how to live peacefully among the lines by setting one line against one another, was totally failed. In 1971, during ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन, पाकिस्तान को दोबारा से अमेरिका की तरफ से बैक स्टेप किया गया, एंड देन पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन डॉर्मेंट और डिक्लाइन फेस में शिफ्ट हो गए। Second era was Soviet intervention in Afghanistan during 80s till the disintegration of Soviet Union. Again we became client to America for the sake of some bounties. Islamization policies लेकर आए ज़ियाउल हक। जिहाद फैक्टर डेवलप हुआ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। मुजाहिदीन को लॉन्च किया गया अफ़गानिस्तान में, उनकी नर्चरिंग की गई पाकिस्तान में। उसके बाद हम आज तक अफ़गान रेफ्यूजी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान से वापस आए, उन्होंने डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तान में इमर्ज हुई, फैनेटिक एलिमेंट्स पाकिस्तान में इमर्ज हुए। Another era was war on terror post 9/11. वॉर और 9/11 के बाद ग्लोबली एक पैराडाइम शिफ्ट आया दुनिया की तमाम फॉरेन पॉलिसीज़ में। वॉर ऑन टेरर सारी कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी में एक कॉर्नर स्टोन बन गया, एंड पाकिस्तान वॉज अ फ्रंट लाइन स्टेट इन दिस वॉर। 50,000 से ज़ायद सिविलियन और सिक्योरिटी ऑफिशल्स कैजुअलिटीज़ हुई। $123 बिलियन से ज़ायद नुकसान हुआ डिफरेंट बॉम्बिंग अटैक्स में, सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स में, फाटा ऑपरेशन में, ड्रोन अटैक्स में। Drawbacks of clientelism. As political economist Akbar Zaidi pointed out, अयूब खान गोल्डन एरा, जो कि काफ़ी एडमायरेबल एरा है अपनी 7% जीडीपी की वजह से, उसमें 5% जीडीपी का इन्हिसार तो अमेरिकन एड पर था। दैट्स मीन कि विदाउट एड आर इकोनॉमी इज़ टोटली हैंडीकैप। और इसी इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान लेड टू एड हॉक पॉलिसी एंड पैराडॉक्सिकल मेजर इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। The other drawback is unending war against terrorism. Due to our clientelistic nature, we have indulged ourselves in extremism and have ingrained terrorism in Pakistan society. As we witness TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan atrocities daily, we are still paying a heavy price of it. We have lost so many precious lives during war against terror and different operations like Radul Fasad, Operation Zarb Azab, and in different bombing and suicide attacks. Wrecking credibility in international arena. क्लाइंटलिज्म ने ब्रूटली हॉर्न किया है पाकिस्तान के सिविलियन डेमोक्रेसी को. All that economic and political upheavals made Pakistan failed and sick man of South Asia. To conclude, Pakistan has always been at the brink of clientelism. जहाँ पाकिस्तान को इंडियन थ्रेट इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ जाए, हम फ़ौरन अमेरिका की तरफ रुजू करते हैं, उन्हें प्लीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ इमदाद और हथियारों की खातिर अपनी जियो स्ट्रेटिजिक वर्थ को, जियो स्ट्रेटिजिक पोजीशन को नीलाम कर देते हैं और अपने ऑल वेदर फ्रेंड्स एंड मोस्ट सेंसिबल फ्रेंड्स को बैक स्टेप करते हैं सिर्फ अपनी कंपेल्ड इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से. As several scholars stated that पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन इस वजह से शेलो और अनस्टेबल हैं because they are not based on ideological, societal or any economic affinity. That's why Pakistan is just a petty beggar for America. The only way to step out from clientelism is embedding self-reliance in different aspects of Pakistan's foreign policy. डेलिकेट बैलेंस एक डायर नीड है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए, ताकि क्लाइंटलिज्म के ट्रेसेस को इरेज किया जा सके
eradicate किया जा सके. As it is rightly said, integrity and credibility of our country is far more superior than being an obedient lieutenant for the sake of some economic bounties and some F 16. Thank you so much.